एवरीवन रियलाइज कि यार ये पीछे भी था, ये आगे भी था, ये कैसे हुआ। एक बदमाश बच्चा होता है क्लास के अंदर, और उसको बदमाश इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि उसने मैं कुछ और नहीं करूंगा तो मैं साइकिल तो चला ही लूंगा अच्छे से। इज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कुछ आउट ऑफ द ब्लू कोई मेरे पास में दिमाग में कोई आइडिया आ गया। इट्स ऑलवेज मंकी सी मंकी डू। पीयूष बंसल ने जब ट्राई किया तो वो गिर गए, तो गिरने के बाद वो बोले यार ये तो गिर गया, मैं ऐसे थोड़ी ना चलाऊंगा मैं साइकिल, ऐसे तो कोई भी गिर जाएगा। शार्क टैंक में जाने से और कुछ हुआ या नहीं हुआ, एकदम से। Hi everyone, welcome to the first episode of Vyapar Catalyst. I'm Avni and today we have Kushal Rathor from the world of fitness and entrepreneurship with us. Kushal is the founder and director of Latitude the India and Ashwa Pro. Thanks, Shavni. Thank you so much for giving such a nice introduction. Thank you. All right. So before diving in, the very first question which I want to ask you is, as a cyclist and as a fitness freak, what was the craziest route of cycling you have explored during your adventure? Every time you start cycling, it gives you a good experience and memory. मैं अपने आप को imagine करता हूँ तो when you dream about yourself, how you should look like. So I always dream about wearing a good helmet, wearing nice goggles, and in a nice cycling jersey, having a nice bike. और उसके साथ में मुझे जो मेरी सबसे अच्छी मेमोरीज याद आती हैं वो लेह लद्दाख की जो साइकिलिंग टूर्स की मेमोरीज हैं. सो आई स्टार्टेड ला टूर द इंडिया. I got a chance to do a cycling tour of Ladakh, Manali to Ladakh, and there was a bunch of Australians with me. By the end of the tour, it was like when we were doing Khardungla, which is the toughest climb. सबको पीछे छोड़ के सबसे आगे जाना और फिर उसके बाद में वापस पीछे आना, just to make sure that the last rider is also riding safely, and then again उससे उसको पीछे छोड़ के सबसे आगे वाले के पास जाना, just to show that I am a leader, I am a tour leader, and I am doing this tour. So by the time we reached there, everyone realized कि यार ये पीछे भी था, ये आगे भी था, ये कैसे हुआ. So that was the time when I feel कि यार yes, uh, this is something which I did, and everyone appreciated and everyone realized कि ये tour में इस तरीके से हो भी सकता है. It would have been an experiential Yes, journey yes. to go to the Ladakh roads with cycle. All right, let's dive into knowing you as a founder and Ashwa Pro. So, what was the idea like that point when it clicked you that this is an idea where I have to go ahead with? In 2012, when I finished my education in travel and tourism, I started La Tour de India. I will come to that La Tour de India later on. But in 2020, when we hit this COVID time, उस टाइम में ऐसा हुआ था कि there was a pause with the La Tour de India business because that was all about travel and tourism. तो उस टाइम में कुछ करना था, कुछ अच्छा करना था, एंड जैसे मैंने अभी कहा आपको कि मैं कुछ सोचता हूँ अपने बारे में या कुछ करता हूँ तो मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आता अपार्ट फ्रॉम साइकिलिंग. और फ्रॉम द वेरी बिगनिंग it's something which you can say it's a self praise, but yes of course मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नया कुछ अलग करने में ही मजा आता है. और मैं कुछ सोचता हूँ तो वो उसी डायरेक्शन में सोचता हूँ कि मुझे वो नहीं करना जो दुनिया कर रही है. जो दुनिया कर रही है, लेट देम डू. व्हाट आई वांट टू डू इज समथिंग वेरी डिफरेंट, सो ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. जब मैं सोचता हूँ तो मैंने सबसे पहले कुछ साइकिलिंग के रेस इक्विपमेंट्स की बात करी जो कि इंडिया में कोई भी नहीं मैन्युफैक्चर कर रहा है. We started with the initial idea of making bicycle rulers. Bicycle rulers is not something new जो कोई दुनिया में कोई नहीं बना रहा है. बहुत सारे लोग बना रहे हैं, इंडिया के अंदर कोई नहीं बना रहा है. अब भी उसको इंडिया में सिर्फ हम लोग ही बना रहे हैं. That's what we proudly say about it, that we are the only manufacturer of bicycle rulers in India. बाइसाइकिल रोलर्स जब बन गए तन वी रियलाइज कि इसका जो एक मार्केट है वो बहुत ही नीश मार्केट है. सिर्फ प्रोफेशनल साइकिलिस्ट ही उसको ले सकता है बिकॉज इट्स हार्ड टू मेक बैलेंस ऑन इट. देन वी ग्रेजुअली मेड सम ऑफ द अदर इक्विपमेंट्स विच हैज सम सपोर्ट सिस्टम. और फिर धीरे धीरे हम लोगों ने एक लाइन ऑफ इक्विपमेंट्स बनाए, एंड देन आई एक्चुअली गेट इनटू इट कि नहीं यार, मतलब कि there's a big market in India, or India itself has a potential. The market is ready, the demand is there, and then why not the product is made in India? So that's how the journey of Ashwa Pro started, with a handful of bicycle rollers and trainers and some bicycle stands, and then now we have almost like 9 SKUs with us, and yeah. Right, that was amazing, Kushal. Moving ahead, how you started your entrepreneurship journey? Like, is it like from the day one you were in the head ki I have to do business, or it just gradually? What was the process like? What was your journey of being an entrepreneur?
श्रावणी, मतलब कि ये बहुत वैसा है कि एक एक बदमाश बच्चा होता है क्लास के अंदर, और उसको बदमाश इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि उसने कोई एक क्लास में कोई बदमाशी करी है। वो शुरू से ही बदमाश है और वो कुछ ना कुछ हिलाता रहता है, कुछ ना कुछ हिलाता रहता है। उसके कारण उसको बदमाश कहा जाता है। सो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी भी कुछ ऐसे ही थी कि रेस्टलेस शुरू से ही था मैं, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। एज लॉन्ग एज यू अलाइव, यू कीप क्रिएटिंग थिंग्स, you keep making things, Hmm. doing experiments, launching some new ideas. And if any of those ideas, things, or experiments turn to a business, it's good. Otherwise, you are just doing what you are do, what you love to do. So, साइकिलिंग एक मेरा पैशन था, जिसको मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ और नहीं करूंगा तो मैं साइकिल तो चला ही लूंगा अच्छे से. So, doing what you like and liking what you do is the first criteria of entrepreneurship. है ना? इसमें ऐसा रहता है कि आप जो दिल से कर पा रहे हो उसमें आप कभी भी फेल नहीं हो सकते, और आप फेल भी हो गए तो उसमें आपको रिग्रेशन नहीं होगा कि चलो यार कुछ नहीं और कुछ नहीं किया तो मस्ती मजाक तो कर ही लिया. So you live a life. So same is with my case कि 2012 के अंदर when I finished my masters in travel and tourism from a very renowned college, one of the best colleges of India, IITTM. वहाँ से कंप्लीट करने के बाद में I jumped into the regular tourism market where I used to do all the itinerary making and the basic things and sitting in an office. और मुझे ये समझ में आ गया था कि यार जो मैंने पढ़ा था, जो मेरा ओरिएंटेशन था कि टूरिज्म मुझे क्यों करना है, वो ये तो नहीं है कि चार दीवारी में बैठ के और कंप्यूटर के सामने लोगों को प्लीज टू कंफर्म योर सर्विसेज, प्लीज टू कंफर्म योर कार, प्लीज टू Hmm. कंफर्म योर गाइड. आई वांट टू गो आउट, एक्सप्लोर माई सेल्फ, डू थिंग्स इन अ वे कि मैं खुद उसको एंजॉय करूं. टूरिज्म इज नॉट सिटिंग इन अ रूम एंड कंफर्मिंग somebody's services. Absolutely. It is something where you enjoy yourself, you feel कि हाँ आप भी कुछ कर रहे हो. सो अदरवाइज तो कुछ और कर लेते. तो अगेन साइकिलिंग जो था वो अच्छा, उसके बाद में ऐसा होता है कि द रियल वर्ल्ड इज दिस ओनली, यू नो, व्हाट यू स्टडी इज नॉट द रियल वर्ल्ड, व्हाट यू स्टडी इज समथिंग व्हिच इज इल्यूजन. व्हेन यू गेट इनटू द रियल वर्ल्ड यू रियलाइज कि नहीं यार जो पढ़ा था वो तो बहुत दूर रह गया, और जब आप एक्चुअल में इंडस्ट्री में आए हो, जो दो लोगों के साथ में बैठ रहे हो उठ रहे हो, तो वो बहुत डिफरेंट है. तो in 2012 and after finishing this I switched couple of jobs to understand कि मुझे मेरे लिए क्या अच्छा फिट हो रहा है, मैं कहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन nothing worked. And then eventually I have to start a bicycle tour company. So bicycle tour company का भी मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये कुछ out of the blue कोई मेरे पास में दिमाग में कोई आइडिया आ गया. It's always monkey see monkey do. So Hmm. फॉरेन कंट्रीज के अंदर पहले से बहुत सारे साइकिलिंग टूर्स चल रहे हैं. फ्रांस के कुछ कंपनीज का मैंने देखा था. When I was in this education, I was in college. I Hmm. saw some of the tours. People are doing motorcycle tours. People are doing tours in some of the foreign countries on bicycle. So that pinched me a lot. और मुझे लगा कि यार जयपुर अपने आप के अंदर इतनी खूबसूरत सिटी है, इतनी इतनी अच्छी सिटी है कि इसमें गलियों के अंदर जाते हैं तो एवरी लेन इज इंटरसेक्टिंग ईच अदर, और इट्स अ प्लान्ड सिटी, एंड देयर इज मच मोर देन शोइंग देम अदर देन दीज मॉन्यूमेंट और द ट्रेडिशनल आइटनरीज. सो bicycle is a very nice option because then only you will be able to explore these inner lanes. Hmm. uh, After 10 o'clock it's hard to walk on these inner lanes or on the main roads, Right. whereas before 9 o'clock or you'll be able to explore the city like a local, and that's what a tourist want. आप कहीं पे भी घूमने जाओगे तो you want to explore the place as a local. Hmm. So that was the idea which was there in my mind, and it took a little time to make people understand that cycling is a possible thing in a city like Jaipur, जहाँ पे आदमी पैदल नहीं चल सकता वहाँ पे साइकिल भी Hmm. चला सकते हैं. But gradually it picked up, और लोगों ने उस आइडिया को एक्सेप्ट किया. Again 99% of the foreign tourists initially accepted it. Nowadays we are having more of domestic tourist as well as foreign tourist. So it is doing good now. But it sounds interesting. While we are talking about your startup, the Tooth India, and how you started the journey of your entrepreneurship, what was the initial days of Tooth India looking like, and what you guys are doing in it? And nowadays, when you say that it's been a whole decade, you guys are promoting cycling in Jaipur lanes and everything. So, how was your experience, like daily waking up in morning and then going for cycling? Coming back. So how's the everything you are putting in the process in the system? तो आपने सबसे पहले जो बोला था कि बोले कि स्टार्टिंग कैसे हुई थी, स्टार्टिंग में क्या करते थे, तो स्टार्टिंग में कंप्यूटर के सामने बैठे रहते थे. वी आर वेटिंग फॉर सम मेल्स कि कोई हमारे को मेल कर दे या कोई बुकिंग आ जाए. सो दैट वाज द इनिशियल थिंग, जब वेटिंग फॉर द कस्टमर्स टू कम. और फिर उसके बाद में जब कस्टमर्स आने लगे तो एक लाइन लग गई, एंड
Now the lifestyle has changed where we start our day like a villager, Hmm. wake up early in the morning at 4:30, do the tours in the morning at 6 to 9, and finish everything by 10 o'clock, wind up everything, go back, have lunch, a nice sleep, a power nap or a good nap, and then again in the evening we do some walking tours as well. Because Jaipur में जो सुबह morning में हो रहा है, that's a different thing, and in the evening it is a completely different shade. Every city has its own charm in the morning and the evening. How's it different and what you're doing in morning and what you're doing in evening? So morning is when the city is very calm and quiet. You get to explore these inner lanes, some of the havelis. You go in these havelis. There are some of the very famous food giants like Lassi Wala is there, then South Chai Wala is there, then Samrat Ki Jalebi is there, then so many famous food giants which are listed in Lonely Planet or Rooted in many of these guidebooks. But regular tourists cannot go by themselves. There should be a local guide to assist Hmm. them. So we make them visit those places early in the morning when some people go to Govind Dev Ji ka mandir. गोविंद देव जी का मंदिर में जब शाम सुबह मॉर्निंग की 7:45 की जब आरती झांकी अटेंड करते हैं, तो उस टाइम में ऐसा होता है कि वो गेस्ट के लिए यूरेका मूवमेंट होता है। सो वो खुद तो नहीं जा सकता उस टाइम में, उसको या तो किसी गाइड बुक में पढ़ना पड़ेगा। ही हैज टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे खड़ा रहना है, कहाँ से मुझे अच्छे Hmm. दर्शन होंगे, कहाँ से मुझे लोग दिखेंगे। सो दैट्स वेयर वी कम्स इन पिक्चर एंड वी हेल्प देम टू मेक देम अंडरस्टैंड एंड एक्सपीरियंस इट इन अ वे इट हैज टू बी। और उसके बाद में इवनिंग इट इज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस वेयर एवरीथिंग लिट्स अप ब्यूटीफुली। जयपुर की आपने चार दीवारी की लाइटिंग देखी है, कितना अच्छा सारी की सारी जो बिल्डिंग्स हैं, उनकी जो विंडोज़ हैं, उनके जो गज़ीबोज़ हैं, वो कितने अच्छे से लिट अप हो जाते हैं। रूफटॉप्स के ऊपर कहीं पे कोई साफे वाला बैठा हुआ है, कहीं पे कोई चाय वाला बैठा हुआ है। सो वी मेक देम विज़िट दोज़ प्लेसेस जो अपने आप के अंदर बहुत ही खूबसूरत है। एंड पीपल इन द इनर लेन्स, देयर इज़ अ लेन कॉल्ड ठठेरे वालों का रास्ता where the tinkers are there. There's a lane called खजाने वालों का रास्ता where the sculpture artists are there. There's a lane called Maniaro ka rasta where the bangle makers are there. Then there's a Bagru walo ka rasta where the Chipa community is there to they're making the blocks, wooden blocks, and then there's people who are doing the block printing. All right, Kushal. So as you're mentioning about, these gullies and everything, and the commercial and the non-commercial part, and also you mentioned about how beautiful Rajasthan is, how beautiful Jaipur is, and once we are diving into this question, like everyone says that Jaipur is a place where Jaipur is very culturally heritage and people welcomes every guest with full open arms. So, what is your experience when you are in a tours and travelism agency, part of Rajasthan and Jaipur? You're also doing it in Udaipur also. So, how is like Jaipur and Udaipur are culturally heritage cities? ये कंपेयर तो नहीं कर पाएंगे बिकॉज कंपैरिजन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन उदयपुर, इट्स लाइक हेवन टू मी। वेयर इज जयपुर, क्योंकि ये मेरी कर्म भूमि है और मैंने इसके बारे में पढ़ा भी बहुत ज्यादा है, तो आई अंडरस्टैंड जयपुर का एक अलग आर्किटेक्चर है। Hmm. इफ यू टॉक अबाउट प्लान सिटी, देयर आर सो मेनी प्लान सिटीज इन द वर्ल्ड, लाइक ग्लासगो अपने आप में एक प्लान सिटी है, Hmm. न्यूयॉर्क, पेरिस, देयर आर सो मेनी प्लान सिटीज, Hmm. every country has its own plan city, whereas Jaipur is the only city in the world which is astrologically planned. When you talk about astrology, जो जयपुर के राजा महाराजा थे Hmm. और सविजय सिंह जी सेकंड जो थे, उन्होंने जिन्होंने जयपुर बसाया था, उनके दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग्स चल रही थी जयपुर को लेके। और जब उन्होंने प्लानिंग को एक साथ में एकजुट किया, तब उन्होंने जयपुर को एक एस्ट्रोलॉजिकली प्लान्ड सिटी के रूप में देखा। Hmm. और उन्होंने ये भी कहा कि इस सिटी को कुछ इस तरीके से बनाना है कि जो भी बिजनेस यहाँ पे आए वो फ्लोरिश करे, और वो उन्होंने सच में सक्सेसफुल करके बताया। तो ऐसा कहा जाता है कि जयपुर के अंदर कोई भी आता है और वो बिज़नेस करता है, तो देयर आर वेरी मिनिमलिस्टिक चांस कि वो फेल हो जाए, वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। So you were mentioning about that you guys are planning to do something very amazing with these uh, manufacturing tools which you are actually making right now. तो आप लोगों का अश्वक को लेकर आगे का क्या विजन है? मतलब what are the things you are planning? Because in this whole decade you have achieved a lot, but still I want to know that what's the bigger vision of yours with Ashwak? सो अश्वा प्रो को लेके बस दिमाग में एक ही चीज़ है कि वी नीड टू मेक लाइफ ऑफ साइक्लिस्ट ईज़ी, और उसको कंटिन्यू करना रहना है हमारे को। एक कम्युनिटी जो साइक्लिंग की डेवलप हुए, साइक्लिस्ट की डेवलप हुए, उसको और एनहांस करना है। साइक्लिंग शुड बी कंसिडर्ड एज अ स्पोर्ट्स एज वेल एज अ लाइफस्टाइल। वी स्टार्टेड विद इक्विपमेंट कॉल्ड बाइसाइकिल रोलर्स, मैंने जैसे बताया आपको हाँ. कि वो सिर्फ प्रोफेशनल साइक्लिंग इक्विपमेंट था। फिर वी मेड सम ऑफ द इक्विपमेंट्स व्हिच आर इजी टू यूज,
बाय एनीवन। सो मैंने, मेरी मदर भी चलाती है उसको, मैंने शार्क टैंक में भी बोला था उसको। वेदर बहुत हार्श है राजस्थान में बहुत बार, और टाइम भी नहीं मिल पाता, और ट्रैफिक बहुत क्रेजी हो रखा है। तो उसके चलते हम लोगों को कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हम लोगों ने डिजाइन करे और बनाए, और हम सोचते हैं कि एक बार जब कोई चलाएगा उसको, जब उसको साइकिल को इंडोर एक्सपीरियंस में उसको मजा आएगा तो बाहर भी चलाएगा। और ग्रेजुअली एक साइकिल का एक एक इकोसिस्टम बनेगा, जहाँ पे आज भी वियतनाम और बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे लोग बाग साइकिल से जाते हैं। एम्स्टर्डम एक कंट्री है जहाँ पे लोग बाग वो भी बहुत साइकिल से वर्क वर्क टू बाइक टू वर्क, और इस तरीके के Office to कॉन्सेप्ट, हाँ, work or ऑफिस टू from वर्क, और office ये, to home, home to यस। office. Let's dive into your journey in season one. I guess you went to Shark Tank. What was your journey like when it just clicked you कि no, I should go to Shark Tank and I should pitch Ashwa there? सो अवनी, ऐसा हुआ था कि मतलब कि मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कोई ऐसे आपको पैसे भी दे देगा कि आप आपका काम आप करो, मैं आपको पैसा देता हूँ। ऐसे तो कभी घर वालों ने भी नहीं बोला हमारे को। लेकिन व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टर्स मीट एंड एवरीथिंग, तो मेरे लिए ऐसा था कि मैं अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो किसी के साथ में बात कर रहा था, समझा रहा था, एंड देयर वाज अ रैंडम पर्सन हु एडवाइज्ड मी कि देयर इज अ शो व्हिच इज कमिंग अप कॉल्ड शार्क टैंक, और उसने यूएस के अंदर बहुत अच्छा किया है, एंड दे डू फंडिंग टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स और न्यू आइडियाज, न्यू स्टार्टअप्स। So I thought I'll give a try to it, and I'll see कैसे होता है, क्या होता है। तो I studied, I learned a little about it, और थोड़े बहुत वीडियोस देखे, मुझे देख के अच्छा लगा। और फिर वो कहते हैं ना कि भाई कुछ चीज होना होता है तो वो होता चला जाता है, तो ऐसे ही कुछ हुआ मेरे साथ में भी। सो इट वाज द राइट टाइम व्हेन आई सॉ दैट फॉर्म। मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था तो एक फॉर्म आया मेरे सामने, और उस फॉर्म को मैंने भरा। इट वाज आस्किंग फॉर ऑल द डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट, व्हाट इज इन योर थॉट प्रोसेस, एंड ऐसा भी हुआ था कि जब मैं इसको कर रहा था, साइमल्टेनियसली वी लॉन्च्ड टू ऑफ आवर आउटडोर साइकिलिंग जिम्स एट सम ऑफ द सोसाइटीज इन जयपुर। सो ये एक बहुत ही अच्छा फ्रेश कॉन्सेप्ट था। जैसे मैंने बताया कि रोलर्स जो है वो प्रोफेशनल साइकिलिंग इक्विपमेंट है, उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स बनाए कि वो हर कोई चला सकता है। मुझे लगा शायद तक 15 या 20 दिनों के बाद में मेरे पास में वापस से एक और ईमेल आया, जिसके अंदर दे आस्क्ड मी कि कैन यू सेंड अस वीडियो शोइंग योर प्रोडक्ट्स एंड व्हाट यू डू एंड हाउ यू डू। सो उस टाइम में हमारे ये आउटडोर साइकिलिंग जिम्स चल ही रही थी 2-3 सोसाइटीज में। सो आई वेंट एंड आई टुक सम गुड वीडियोस, एंड आपने कल क्या किया था और आज कितनी कैलोरीज बर्न करी है, हाउ मच स्पीड यू आर गेनिंग। सो दिस वाज राइट टाइम फॉर मी कि मैं उनको बता पाया, सब कुछ कर पाया। और फिर उसके बाद में दिस वाज द थर्ड राउंड, एंड द फोर्थ राउंड वाज व्हेन दे कॉल्ड अस इन दिल्ली। और वो दिल्ली वाला जो एक्सपीरियंस था वो सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट और सॉ सो मेनी इंटरेस्टिंग पीपल। देयर वाज ऑलमोस्ट 40 स्टार्टअप्स, एक के बाद एक सबको बुलाए जा रहे थे। जाने से पहले मैं सबसे मिल रहा था, भाई तेरे पास में क्या है, तेरे पास में क्या है, कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है। जिसको भी मैंने बताया उसने मुझे अप्रिशिएट किया, जिसको जिसने मुझे बताया मैंने उसको अप्रिशिएट किया। और द आइडियाज वर अमेजिंग, मतलब कि दे आर रियल टाइम आइडियाज व्हिच कैन ब्रिंग सम चेंज टू द लाइफ। लेकिन मे बी वो अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम टू पिच देम, और मे बी वो मास मार्केट को कैटर नहीं कर सकते, लेकिन They are in a particular niche, यस दे I आर इन अ believe. पर्टिकुलर नीश। शार्क टैंक में मुझे लगता है कि वो बहुत जिसमें पैसा बन जाए, या फिर एंड डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी दे हैव, वेयरएज आइडियाज तो एक से बढ़ के एक वहां पे मैंने देखे। और मुझे लगा, मैंने कहा यार ये मेरे पास में पैसे होते तो मैं कर देता इस पे। लेकिन ठीक है, इट वाज गुड। दैट वाज द फोर्थ राउंड, एंड देन फोर्थ राउंड भी बहुत अच्छे से हुआ था। देयर वर 2 और 3 यंग बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत अच्छे लोग थे जो जिन्होंने पूरा अच्छे से डिटेल में समझा। दे ट्राइड द इक्विपमेंट्स, दे अंडरस्टैंड कि इसमें किस तरीके से स्केलेबिलिटी जाएगी, इसमें किस तरीके से बिजनेस बनेगा। और दे आस्क्ड अस सेवरल क्वेश्चंस। और उसके बाद में एक रिव्यू राउंड भी हुआ था उनके साथ में, जिसके अंदर दे गेव अस some inputs when you go to Shark Tank. If you've been selected in Shark Tank, what you have to tell them, and कैसे कैसे होएगा। उसके बाद मैं after a month's time I got a call from मुंबई, और वहां पे मेरे सिवाय और करीब 40-50 लोग थे, जो भी मतलब कि अव्वल दर्जे के थे, मतलब कि एक से बढ़ के एक, सब बहुत अच्छे लोग। और उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में शार्क टैंक का एपिसोड हुआ जो आपके सामने था। Of when you went to Mumbai and everything was happening, तो जो हमने टेलीविजन पे देखा था वो एक्चुअली सिर्फ 12 से 13 मिनट की क्लिप थी, बट you were actually on the backstage, we were discussing that it was 40-45 minute long pitch. So how was that the once that door is opening and you are going? So
How was that experience? तो वो भी अब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, लेकिन क्या होता है कि ना सब कुछ सामने हो रहा है, एवरीथिंग इज लाइव, एवरीथिंग इज वेरी स्पॉन्टेनियस। तो आप वो अपना रियल यू तो छुपा रख सकते ही नहीं हो। यू ट्राई टू बी वेरी काम क्वाइट, मैं अच्छे से जवाब दूंगा, मैं ये दूंगा, लेकिन वो जब वो यू आर इन अ हॉट सीट तो चीजें बहुत नेक्स्ट लेवल पे भी चली जाती है। सो ऐसा ही हुआ था। 45 मिनट्स का ऑलमोस्ट राउंड था, जिसमें एक के बाद एक वो पूछे जा रहे थे। और मुझे शायद तक 5 से 10 मिनट में समझ में आ गया था कि ये प्रोडक्ट इनके मतलब का नहीं है, बिकॉज मैं जिनके सामने एग्जिबिट कर रहा हूँ उनमें से 4 जने तो अनफिट है, और मतलब कि 4 में से 3 तो अनफिट है ही है। अमन सेड कि यार ये प्रोडक्ट सही नहीं है, अनस्टेबल है। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा है यार कि आप स्कूटर चला रहे हो, अब मैं आपको एकदम से हायाबुसा दे दूं तो हाउ डू फील? It's the same. This is a professional cycling equipment. We are not making you ride a stationary bike. It is Hmm. a equipment which professional cyclist rides, Hmm. and that's the way of doing uh, this entire experience. Piyush was saying कि आपका पुराना वाला बिजनेस अच्छा था, better concentrate on that, ये वो ऐसा वैसा। तो हालांकि वो क्या, फुल स्टॉप लगा दें वहां पे? लाइक यू बीइंग ए क्यूरेटर, यू शुड कीप डूइंग थिंग्स एंड देयर इज नो एंड टू इट। कोई Hmm. ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ पे मैंने इतना अच्छा कर लिया तब मैं बस उसी को करूँ। आई मीन देन व्हाई यू आर हियर? You are also looking for some new alternative options. So Obviously. that was some discussions which were going on, और मुझे लगा कि काफी सारी चीजें जो थी, जैसे एक वो बात हुई थी कि तुम बहुत जिद्दी हो, तुम दीवानेपन से ऊपर निकल चुके हो, ये वो ऐसा वैसा। तो उसमें मैंने भी बोला कि दीवानापन और जिद्दी मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन जो कर रहे हैं वो दीवानापन और जिद्दी बन के ही करना पड़ेगा, तभी आप यू विल क्रॉस द बाउंड्रीज और यू विल क्रॉस द लिमिट्स। तो ऐसी काफी सारी बातें हुई थी हमारी, लेकिन उसमें से जो निकल के आया वो जो आपके सामने था वो था। लेकिन हाँ, इट वाज अ 45 मिनट्स गुड वन ऑन वन डिस्कशंस। काफी सारी चीजें अच्छी भी हुई थी, काफी सारी चीजें ऊपर नीचे भी चली गई थी, लेकिन हाँ ठीक है, इट वाज गुड। 10 मिनट आफ्टर 10 मिनट्स आई रियलाइज कि नहीं यार, इनके समझ में आने वाली चीज नहीं है। पीयूष बंसल ने जब ट्राई किया तो वो गिर गए। तो गिरने के बाद वो बोले यार ये तो गिर गया, मैं ऐसे थोड़ी ना चलाऊंगा, मैं साइकिल ऐसे तो कोई भी गिर जाएगा। अरे तो अब गिर ही जाओगे जब, मतलब कि ये मेरा इक्विपमेंट है, मैं सिखाऊंगा बस, तभी तो सीखोगे आप। साइकिल भी जब चलाई थी तो ऐसा थोड़ी ना था साइकिल एकदम से जंप ऑन हो गए और साइकिल चलने लग गई अपने आप। यू लर्न इट। सो आई एम हियर टू मेक यू लर्न, एंड दिस इज द यूएसपी ऑफ माय प्रोडक्ट। मैं किसी को भी साइकिल दे दूंगा और वो चला लेगा तो फिर मेरी क्या जरूरत है? सो दिस इज द बिजनेस मॉडल वी आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड दिस हाउ इट वर्कड। और वहां पे ऐप एक थी, जो मेरी ऐप जिसको काम करना था, वहां पे ऐप भी काम नहीं करी, और बहुत सारी चीजें हो गई थी, लेकिन ठीक है, इट वॉज गुड। And how was your experience of meeting other people? What were their ideas and वो सबसे अच्छा था। मुझे ऐसा लगा कि मेरा वहाँ पे जाना जो था वो इसलिए सक्सेसफुल मैं कंसिडर करता हूँ कि मैं इतने लोगों से मिला, और मैं ऐसा सोचता था कि मुझे जो मैं कर रहा हूँ उसके लिए मुझे इस इन कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है, या फिर कुछ आइडियाज़ मैं और ट्वीक करना पड़ेगा। Hmm. लेकिन व्हेन आई मेट सो मेनी पीपल विद सो मेनी इंटरेस्टिंग आइडियाज़ जो शायद तक एयर भी नहीं हुए थे, और जो वापस मैं कभी कहीं पे देखता भी नहीं हूँ, दे वर हैविंग सो गुड आइडियाज, और वो लोग भी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। Alright, तो so there are some ideas जो shoot होते हैं पर air नहीं होते। हाँ, बहुत सारे थे वहाँ पे, जो मुझे तो बहुत पर्सनली, जो मुझे दो चार तो बहुत अच्छे लगे थे। मेरे ख्याल से जो जो क्रिएटिव कंटेंट होता है, या फिर जो मसालेदार कंटेंट होता है, वो शूट हो जाता है, वो एयर हो जाता है, और बाकी नहीं होता। तो आई डोंट नो व्हाट इट इज। ऑलराइट सो काफी लोगों को ऐसा लगता है कि वंस यू आर इनटू शार्क टैंक तो जो भी वो शार्क्स होते हैं जो 5 वहां पे बैठे होते हैं यू गेट अ वेरी गुड फ्रेंडशिप विद देम एंड देन यू आर जस्ट इन कनेक्ट विद देम। तो आपके साथ ऐसा हुआ कि वहां जो 5 लोग या 4 लोग आपके टाइम पे बैठे थे आपने बाद में किसी को रीच आउट किया हो किसी से कनेक्ट हुए हो आप? आपको देखने के बाद में लगा क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, तो आई मीन इट वाज अ प्रॉपर हॉट डिस्कशन एट द एंड, और मैं तो लास्ट में जब उन्होंने बोला कि सॉरी वी कैन नॉट डू एनीथिंग, तो आई सेड थैंक यू। और इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। लेकिन हाँ, मतलब कि शार्क टैंक में जाने से और कुछ हुआ या नहीं हुआ, एकदम से मार्केट के अंदर बहुत अच्छी डिमांड आ गई। पीपल स्टार्टेड आस्किंग फॉर आवर प्रोडक्ट्स, बिकॉज उससे पहले लोगों को पता भी नहीं था। उस टाइम में आपने किस तरीके से उसको पोर्ट्रेट किया, उस टाइम में किस तरीके से पिच किया, और चीजें अच्छे से हो गई। आपने देखा होगा बहुत सारे डंप से डंप आइडियाज होते हैं, वो वहां पे हिट हो जाते हैं, वहां पे लोग बाग उनको इन्वेस्ट कर देते हैं। वेर इज देयर आर सम क्रेजी आइडियाज which do not work, वो उस टाइम में वर्क नहीं करते। तो दैट इज अ मूवमेंट, आई वुड से, कि वो उस टाइम में किस तरीके से हुआ, क्या हुआ, और बाद में चीजें क्या होती है वो बहुत डिफरेंट होती है।
All right. So as we were talking about the tattoo and the Shark Tank experience and everything, so from the initial days, the Ashwa Pro or the Tour de India, were they always very smooth sailing things, or there were days when you feel like कि, I don't want to do this? मतलब कि लाइफ इज नेवर परफेक्ट वो तो कभी हो भी नहीं सकती है, वो कभी आप एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हो। तो देयर आर मोमेंट्स व्हेन इट कम्स टू लेट टूर द इंडिया। तो लेट टूर द इंडिया में बहुत टफ टाइम देखा है, जब ऑलमोस्ट 3-4 साल तक कोई बिजनेस नहीं था, बिकॉज इट वाज अ कॉन्सेप्ट वेयर पीपल, इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट फॉर somebody कि साइकिल कैसे कोई चला लेगा जयपुर में, जहाँ पे आदमी पैदल नहीं चल सकता, वहाँ साइकिल चलाने की बात कर रहे हैं। एंड अगेन इट्स अ न्यू आइडिया, सो उसको पिच करने में और उसको पेनिट्रेट करने में टाइम लगा। वी ट्राइड मल्टीपल वेज। तो आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स जो ये सिमिलर टाइप के काम करते थे। तो चलो ठीक है यार, आपका मैं टूर का पैकेज बना देता हूँ, उसमें मेरा कुछ थोड़ा मार्जिन रह जाएगा, एंड दैट्स हाउ आई सस्टेन। बट द लॉन्गर विजन और द बिगर पिक्चर इज ऑलवेज लेट टूर द इंडिया, वेयर आई नीड टू वर्क ऑन व्हाट आई लाइक, और द साइक्लिंग टूर कॉन्सेप्ट। और वो जो टाइम था वो बहुत डिफिकल्ट था। अब तो उसको पीछे मुड़ के देखते हैं तो Initial 3-4 हाँ, years. इनिशियल 3-4 years इट वाज रियली टफ व्हेन यू गो टू पीपल एंड मेक देम अंडरस्टैंड कि यार आओ, आप एक बार करके तो देखो, आई डू इट फॉर फ्री, आप आ जाओ, मैं करा दूंगा। व्हेन पीपल स्टार्टेड सेइंग दैट दिस 3 hours इज माय हाईलाइट ऑफ इंडिया जर्नी, देन यू गेट द रियल बूस्ट कि नहीं यार, मतलब कि You are doing हाँ, something right. अपन ऐसे तो कुछ नहीं कर रहे हैं, अपन तो कुछ स्पेशली कर रहे हैं। और फिर जब अश्वा प्रो की बात आई तो ऐसा था कि यू गेट सीजन्ड, यू अंडरस्टैंड कि यार ये इसी तरीके से चलता है, इसी तरीके से होता है। आप कोविड टाइम में आ गए हो, उस टाइम में आपके पास में, जब कोविड आया था उस टाइम में मार्च था, हमारा सीजन ऑलमोस्ट खत्म सा हो रहा था। तो अच्छा खासा पैसा था सीजन में कमाया हुआ, और वो सारा का सारा इधर आपने लगा दिया है। अब बात आती है कि अब सेल करना है। तो सेल तो ओवरनाइट नहीं होता, दैट नीड्स टाइम, दैट नीड्स पेशेंस, और मार्केटिंग भी चाहिए होती है। तो सारा का सारा इक्विपमेंट में लगा दिया, और इक्विपमेंट में भी बहुत सारे प्रोटोटाइपिंग करी, जैसे मैंने बताया कि वी आर द फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस्ड दीज बाइसाइकिल रूलर्स इन इंडिया। तो कोई बेस नहीं था, ऐसा नहीं था कि है ना, ऑफ कोर्स आई मीन जो पुराने इक्विपमेंट्स थे उनको देख के कुछ समझा, कुछ किया, लेकिन स्टिल रिसोर्सिंग कहाँ से क्या आएगा, कहाँ से क्या आएगा। अगेन द मटेरियल यूज इन दीज रोलर्स इज 6061 T6 ग्रेड, विच इज हार्ड टू सोर्स। फिर बाद में पता पड़ा कि ये कंपनी है जो इसको बनाती है, एंड देन अगेन वी हैव टू रिक्वेस्ट, वी हैव टू फॉलो देम अगेन। उनको भी ये बनाने में मजा नहीं आ रहा, क्योंकि दिस स्मॉल ऑर्डर। एक नई कंपनी क्या ऑर्डर दे देगी, 100 kg का ऑर्डर दे देगी, 200 kg का ऑर्डर दे देगी, दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। सो उनको बहुत फॉलो अप करना पड़ा। और फिर उसके बाद में जब मटेरियल आ गया, रॉ मटेरियल आ गया, तो फिर उसके बाद में उसको मशीनिंग कराने के लिए सही लोग नहीं मिले। सही लोग मिल भी गए तो दे वर आस्किंग सो मच ऑफ मनी, जो आपके पास में है नहीं देने के लिए। एंड अगेन थोड़ा सा चाऊ से कराया, थोड़ा सा माऊ से कराया, थोड़ा सा कहीं से कराया, थोड़ा सा कहीं से कराया, और प्रोटोटाइप फेल हो गया। तो फिर उसके अंदर नया प्रोटोटाइप बनाया। तो वो जो टाइम था, वो बहुत टाइम टेकिंग था। और उसी टाइम में ऐसा लगता है बोले यार, या तो अपन सही जा रहे हैं या फिर गलत जा रहे हैं। तो उस टाइम में डिसाइड नहीं कर पाते, लेकिन बट अगेन यू आर इन द मिडिल, सो पीछे मुड़ के देखने वाला तो कभी दिमाग में रहा ही नहीं है मेरे। तो बस वो कीप डूइंग, और थिंग्स गेट बेटर। Got it. When we are talking about these equipments you are making, and you are also saying that you are the first one to make it in India, uh, and obviously this market is also very niche. So how you start this thing? Like you are having your own manufacturing unit also. So what are the equipments you are making, and what's the process of making these equipments? यू ऑलवेज स्टार्ट विद व्हाट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द मार्केट। सो मैंने सबसे पहले जो बाइसाइकिल रोलर इंट्रोड्यूस करे थे, तो 2016 के अंदर मेरे पास में कुछ साइकिलिंग किया करता था, तो मैंने कुछ रोलर्स इंपोर्ट करे थे मेरे खुद के लिए। और वो जो रोलर्स थे वो बहुत महंगे थे। तो दैट टाइम it was okay for me to buy a equipment which is costing 30,000 rupees, whereas I always considered this in my mind कि जो एक साइकिलिस्ट आ रहा है, एक बहुत हम्बल फैमिली से आ रहा है, क्या उसके लिए 30,000 रुपए का इक्विपमेंट खरीदना, पहले तो 1-1.5 लाख रुपए की साइकिल खरीदे, दे आर इनटू प्रोफेशनल साइकिलिंग, एंड देन अगेन बाइंग ए 30,000 इक्विपमेंट इफ दे आर कमिंग फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, ये कैसा रहेगा। सो मेकिंग ए इक्विपमेंट विच इज वेरी पॉकेट फ्रेंडली, और कोई भी खरीद ले, वो इम्पोर्टेंट है। So when I compared the equipment which I had in 2016 to what I'll be making, so I always have the benchmark कि भाई मुझे वो जो मैंने जापानीज इक्विपमेंट जो मैंने लिया है, मुझे उसी का बेंचमार्क सेट करना है। और आई अंडरस्टैंड कि इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स, क्या क्या एसेसरीज लगी हुई है, क्या क्या इसमें टूल्स लगे हुए हैं। तो उसके बेसिस के ऊपर मैंने स्टार्ट किया, एंड देन धीरे धीरे मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो मार्केट है ये बहुत नीश मार्केट है, इससे मैं पैसा नहीं बना सकता। ये मैं सेल कर सकता हूँ। अगेन आई कैन हेल्प सम ऑफ दोज पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड दिस 30,000 ऑफ इक्विपमेंट,
आई कैन ऑफ कोर्स हेल्पिंग दैट कम्युनिटी, बट आई कैन नॉट मेक मनी आउट ऑफ इट। सो उसके लिए फिर मैंने ये एक साइकिल का इक्विपमेंट बनाया जिसके अंदर एक सपोर्ट सिस्टम था, और वो काफ़ी अच्छे से पिक किया, उसको अच्छे मार्जिन्स पे भी सेल किया, बिकॉज दैट इज अगेन नॉट फॉर दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी हु इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर देयर प्रोफेशनल रेसेस। वो एक फैंसी आइटम था, तो फैंसी आइटम ज़्यादा अच्छे से बिकते हैं, अच्छी रेट से बिकते हैं। एंड देन दैट हेल्प्ड अस कि अब हम लोग और अच्छे इक्विपमेंट्स पे काम करें, तो हम लोगों ने एक साइकिल का एक स्टैंड बनाया, विच इज़ अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट एसेसरी विच एवरी साइकिलिस्ट वांट टू हैव, जिसके हम्म। अंदर साइकिल कैन बी पार्क, कैन बी डिस्प्लेड। आपकी ड्राइंग रूम के अंदर आपने लाख रुपए की साइकिल ली है, उसको आपके ड्राइंग रूम में अंदर आपको सजा के रखना है, तो देयर शुड बी अ प्रॉपर स्टैंड ऑफ इट। सो वो स्टैंड हमने बनाया, उस स्टैंड के मल्टीपल यूजेस थे, यूजेस हैं, जिसमें उसको आप सर्विस कर सकते हैं साइकिल को, आप वॉश कर सकते हैं। बहुत सारी जो महंगी साइकिल्स आती हैं उनके अंदर स्टैंड होते नहीं है, या फिर लोग बाग लगाते भी नहीं है, तो टू पार्क दैट बाइक यू नीड अ स्टैंड। सो वी मेड दैट स्टैंड, दैट इज अ हॉट सेलिंग प्रोडक्ट नाउ, वो सबसे ज्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट है हमारा। देन वी मेड अ बाइसाइकिल लेदर सीट, और उसके अंदर हम लोगों ने वही कंफर्ट दिया जो वहाँ की फॉरेन कंट्रीज की 25,000 की और 30,000 की सीट्स, बिकॉज द बेंचमार्क इज ऑलवेज सेम, कि जो बनाना है वो अच्छा करना है। आई एम नॉट डूइंग इट जस्ट टू सेल, आई एम डूइंग इट टू मेक ए नेम Out of this. आउट ऑफ दिस। यस, मेरी दाल रोटी चल रही है, मुझे अब दाल रोटी के लिए काम नहीं करना है, अब मुझे जो काम करना है वो कुछ अच्छे के लिए करना है, जो जो मुझे एक नाम दे। So while we are talking about these things which you are making, the manufacturing of it and everything, when was the time when you feel out that now Ashwa is not just idea, but it's a full-fledged running business? And what was your feeling when this thing was happening? Because you were mentioning regularly that, this is something where you are एक्चुअली थिंकिंग कि मुझे यहाँ से अपना नाम बनाना है। तो वो कब हुआ कि अब अश्वा प्रो एक आइडिया नहीं है, पर अब लोग उसको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, इट इज अ बिजनेस, यू आर गेटिंग रेवेन्यूज यस, आउट ऑफ इट। तो इसमें शार्क टैंक ने तो सबसे बड़ा सपोर्ट किया ही है। देयर आर पीपल हु ऑफ कोर्स मेड फन आउट ऑफ इट कि यार ये क्या है, इसमें तो गिर रहे हैं, लेकिन देयर पीपल हु नो अबाउट इट, दे ऑर्डर्ड इट, और जो सेल जो हुई थी वो एकदम से बूस्ट हुई थी। और आज भी हमारे पास में सेल आती है, तो उसमें हम लोग बहुत बार पूछते हैं लोगों से कि हाउ डू यू कम टू नो अबाउट अस, तो दे से दैट वी सॉ अ वीडियो ऑफ योर्स ऑन शार्क टैंक एंड वी ऑलवेज वांटेड टू बाय इट, वी वांटेड टू गिव अ ट्राई टू इट, हम्म। and then we saw it in some of other places, or in some of the videos, or in our cycling community only somebody bought it and they gave a good review about it. So धीरे धीरे ये ऐसा हुआ कि not with just one or two SKUs, उससे कुछ नहीं होगा, you should have more and more products, then only you'll be able to make a business out of it. uh, अगेन प्रोडक्ट्स इन द सेम लाइन। हम्म। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि आपसे कि मैं रोलर्स बना रहा हूँ और मैं रोलर्स बनाते बनाते एकदम से मैं बोलने लग गया कि नहीं, मैं अब मोटरसाइकिल बना रहा हूँ, नहीं। अगेन साइकिलिंग यदि मैंने चूज किया है तो वो साइकिलिंग का सेगमेंट मेरा रहना चाहिए। अश्वा प्रो डिनोट्स हॉर्स एंड हॉर्स पावर, वर्ल्ड वाइड जो पावर का डिनोमिनेशन है वो हॉर्स पावर ही है। हम्म। तो अगेन इट सिंबलाइज की हॉर्स पावर है, और इट शुड कीप गोइंग एंड इट शुड हैव सम प्रोडक्ट्स व्हिच इज रिलेटेड टू हॉर्स पावर एंड साइकिलिंग। सो और जितने ज्यादा प्रोडक्ट आएंगे उतना अच्छा बिजनेस आएगा, और धीरे धीरे ये ग्रो कर रहा है। मैं अभी बताऊं तो आपको ऑलमोस्ट 200 to 300 SKUs, 200 to 300 pieces we have sold of each SKU as of now। जो 5 प्रोडक्ट मैंने बताया उसके सिवाय 3-4 और हैं, तो इट्स अ गुड बिजनेस नाउ। Any outdoor gym you have established? यस, सो आउटडोर साइकिलिंग जिम का ही जो कॉन्सेप्ट था, मैं उसको शार्क टैंक में लेके गया था। हुआ ये कि स्टिल इट इज अ फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट फॉर द इंडियन मार्केट, अभी इसमें टाइम लगेगा। फर्स्ट वी नीड टू एजुकेट पीपल, फॉर दैट वी आर डूइंग सम इवेंट्स, रेगुलर इवेंट्स हम लोग कर रहे हैं। वी हैव सेट अप सम जिम्स, जहाँ पे हम लोगों ने इंडोर में प्रॉपर एक डिस्को थीम दी है, एंड देन वी सेट अप सम स्क्रीन्स वेयर दे कैन सी some different interesting routes crossing some of the good nice terrain Hmm. and sea area or foreign। एक अच्छा सा पूरा का पूरा सिस्टम दिख रहा है उसमें, एंड देन दे कैन सी देयर स्पीड, दे कैन सी देयर हाउ मेनी कैलोरीज दे आर बर्निंग इन द बिग स्क्रीन। सो वो जिम हम लोगों ने सेटअप किए हैं। और जैसा मैंने कहा कि एक बार अब थोड़ा सा एक रेवेन्यू हम लोगों के पास में अच्छा आ जाएगा, तो देन वी विल स्टार्ट इट अगेन on a larger scale with more societies. The idea is still in my mind, and Hmm. we are trying to
डू इट इन अ डिफरेंट वे, नॉट जस्ट कि जैसे हम लोगों ने किया था वैसा नहीं, अब इसको थोड़ा सा और बड़े लेवल पे करना है, तो वी हैव टू वेट, वी हैव टू गैदर मोर रिसोर्सेज, मोर फंड्स, दैट वी नीड नॉट टू लुक बैक. Got it. Yes. So it's been a decade you are, Yes. working in such a niche marketing as concept of cycling, where, a lot of people have no ideas that this could be a business stream, or, cycling could be an investment. So what according to you were the three challenges across this whole 10 years, 12 years of journey you feel like working in a particular niche gets you into? सो चैलेंजेस, जैसे मैंने कहा कि आप जब खुद के आइडिया के ऊपर काम कर रहे हो, डूइंग व्हाट यू लाइक एंड लाइकिंग व्हाट यू डू, तो चैलेंजेस आते हैं. एंड अगेन चैलेंजेस समटाइम्स मोटिवेट्स यू. सो जैसे शार्क टैंक में हुआ कि फंडिंग नहीं मिली, तो दैट टाइम इट वाज अ मूवमेंट कि यार ये क्या हुआ, इतनी दूर से आया, ये हुआ वो हुआ. लेकिन उसके बाद में जब देखा तो एकदम से इतना बड़ा प्रमोशनल स्टंट हुआ ये, और एकदम से सेल्स बढ़ गई. सो चैलेंजेस आते हैं, और साइकिलिंग के अंदर भी बहुत सारे बैक टू बैक चैलेंजेस आते हैं. अश्वा प्रो के अंदर भी बहुत सारे चैलेंजेस आए, और चैलेंजेस आते रहेंगे. इट्स जस्ट यू कीप डूइंग थिंग्स. अभी तक जो चैलेंजेस आए हैं वो फंड्स को लेके आते हैं. सबसे बड़ा चैलेंज मेरे ख्याल से फंड्स को लेके ही होता है. घर वालों का एक अलग प्रेशर होता है कि अब क्या है ये, व्हाट व्हाट इट इज गोइंग ऑन, बिकॉज आपने बड़ा सारा तामझाम इकट्ठा कर लिया है. जो घर वालों को लगता है, आपके लिए तामझाम नहीं है वो, जो घर वालों को लगता है. अब आपका थोड़ा बहुत सामान जो है वो घर पे पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत सामान फैक्ट्री में पड़ा हुआ है. फैक्ट्री डोंट हैव मच स्पेस नाउ, और नया स्पेस के लिए आपको वापस से और पैसा लगाना पड़ेगा. थोड़ा बहुत सामान घर पे ला रहे हैं, घर वालों को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, और सब कुछ अच्छे से चल रहा है, लेकिन एकदम से एक चीजें थोड़ी सी होल्ड हो गई What's है. the most sarcastic taunt or the sling you have सो दैट received दैट्स from व्हाई your मैं family? मतलब कि मेरे फादर मुझे कबाड़ी बोलते हैं. सो वो भी एक उनका एक तरीका है कहने का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जब जब मुझे ये बोलते हैं तब तक मुझे एक और एनर्जी आती है, और मुझे लगता है कि ठीक है, अब बताता हूँ उनको. सो दैट इज समथिंग व्हिच ऑलवेज पुशेस यू, हाउ यू टेक इट. आप उसको पॉजिटिव लो. पीपल एट योर होम वो कहते हैं जैसे कि घर वाले तो गुस्से में ही बात करेंगे, बाहर वाले आपसे प्यार से बात करेंगे. तो घर वालों का तो एक टॉन्ट मारने का एक वो प्रैक्टिस है, एंड दैट इज गुड. यू टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे. घर वाले आपको कुछ बोल रहे हैं तो they are the people who are your best well wishers, and they want you to do good. वो आप गलत कर रहे हो तब भी वो आपको टोकेंगे, और जब आप अच्छा कर रहे हो तब भी आपको हार्डली अप्रिशिएट करेंगे. सो दे आर गुड गुड फैमिली मेंबर्स. और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब बात आती है चैलेंजेस की, तो ऐसा होना चाहिए कि आपके पास में दाल रोटी का जुगाड़ होना चाहिए. जब आप कोई बड़ा पिक्चर विजुअलाइज कर रहे हो, जब आप कोई बड़े काम पे काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तब आपके साथ में एक पैरेलल कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, दैट कीप्स यू survive, that makes you There survive, should be a survival. yes. Uh, Maybe a job, maybe a some side business, maybe something, and you always concentrate on your what bigger vision. was your सो इसके अंदर जो अश्वा प्रो के अंदर है, तो आज भी मेरे पास में लटूर द इंडिया का बहुत बड़ा बैकअप है. जब लटूर द इंडिया इनिशियल स्टेज पर था, तब मेरे पास में बहुत छोटे छोटे काम आते थे, मैं उनको करता था. एंड उसमें जितना समय लगता था, उसके बाद में जो भी समय बचता था वो पूरा लेट द इंडिया के प्लानिंग्स में, या फिर उसके अंदर एनहांसमेंट में लगता था, मार्केटिंग में लगता था. लेकिन हाँ, मतलब कि ऑलवेज देयर शुड बी समथिंग which helps you to keep working or sustain yourself. Otherwise एक टाइम के बाद में तो आप किससे ज्यादा बोल भी नहीं सकते. तो this is something which I believe कि you can only achieve your goals till the time you have backup. है ना? ऐसा नहीं होगा कि आपने सोचा चीजें हो जाएंगी, जब तक वो उस चीज मतलब कि until unless you get success, uh, you should keep working, and you should have some support. The support should be your own. ऐसा नहीं होना चाहिए कि you are dependent on somebody. any other? Yes. So moving ahead, as we were in your office this morning, we were seeing there is a team of 20-25 people working with you. So how was that whole journey of building a team as a leader, and what was your expectations when you see these people, and what results are they giving to you? So I feel a little blessed in this case, that sometimes I see that by the time I finish
explaining things, people started executing it. That's my team. और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बिना कुछ कहे ही चीजें हो जाती हैं, और with just a small idea people start working in a bigger picture of it. तो वो टीम जो है वो मेरे पास में है, और इट इज ऑलवेज अ टीम वर्क। आप खुद तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप तो जितना कर सकते हो वो उतना ही कर सकते हो कि एक आइडिया को अच्छे से लॉन्च कर दो, और उसके बाद उसकी सक्सेस जो है वो बहुत डिपेंड करती है आपके पास में कैसी टीम है। सो आई एम ब्लेस्ड विद अ सॉलिड टीम। What were the things you were actually लुक व्हेन आई look यस when यस you had सो someone? एक तो थोड़ा सा पागलपन होना चाहिए। बिना पागलपन के ये इस तरीके के काम तो नहीं कर पाएंगे वो। और दे शुड बी वेरी ऑनेस्ट when it comes to the task, it comes to the customer handling, or they should feel responsible, they should have some authority in them, और they should come from a very good background, है ना? एक अच्छी फैमिली से आएंगे लोग तो वो अच्छे ही होंगे। दैट्स व्हाट आई बिलीव कि अच्छे संस्कार यदि मिले हुए होंगे तो वो आगे से आगे अच्छा ही काम करेंगे। So I always, when people say कि check references, so I never check references कि आपसे पूछूं या उससे पूछूं। I Hmm. always look for the family background, ये कहाँ से आए हैं। यदि ये अच्छी फैमिली से आए हैं तो ये हमेशा अच्छे ही होंगे। So that's what I believe in, and that's how I select the people. What is that one piece of advice do you think you should give to young entrepreneurs who are just starting in a journey where they are concentrating on a very niche sector? What would be your advice to them? Advice, I mean, for every person who start their journey or think of doing some business or maybe a startup, is that, I mean, some idea is in their mind and they want to start with it, they should be very honest to what they're doing. अभी ऐसा हो रहा है कि लोग बाग सिर्फ एक अजीब सा आइडिया लेके आ जाते हैं, या फिर जस्ट टू मेक मनी आउट ऑफ इट, पीपल जस्ट वांट टू डू समथिंग, और they have some support or they have some good financial background, they are doing it, उसके चलते उन लोगों ने कुछ कर लिया हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। वेर एज आइडिया और बिजनेस यदि आप कर रहे हैं तो यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट, you should have a very strong belief in it. Thank you so much, Kushal, for spending your time with us Thank you so and much. sharing such a insightful, talk. It's lovely to know about this field because personally, I have never went into the place where I'm seeking cycling as an option where you are running a wholesome business out of cycling and everything. And whenever we talk about tours and travels, people are talking about experience and everything. But cycling as an experience is itself a new concept which I'm seeing. Also, seeing Jaipur from a very different point of view is the very first time me and our audience would have been seeing this, that this is also a part where we are seeing. Thank you very much for joining us. Thank you so much, Avni. Thank you so much. Thanks everyone.